एक हमें उन्हें टोटालिटी में देखना होता है कि हर तरह से ओवरऑल जो बच्चों का वेल बीइंग है, उनकी जो सफलता है वो कैसे हो सकती है। और एक हिस्सा जिस पे माई चॉइसेस फोकस करता है कि उनकी सेफ्टी या प्रिवेंशन जो है, उस पर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं एज ए स्टेक होल्डर। तो आज मैं उसके ऊपर बात करूंगी। Yeah. So what Farzana was just describing is when we set out to work with children, we should look at the work of children in a totality. Like it cannot be just isolated that I'm just doing any one vertical. But when we are doing the work of children, it involves a lot many factors. Particularly, it involves in the prevention, and also it involves in intervention or action taking when something happens in it. And this session is mainly going to focus on how to equip ourselves in understanding these both. यस पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। Sorry. सो अ ब्रीफ हिस्ट्री माय चॉइसेस के बारे में, कि माय चॉइसेस फाउंडेशन कब स्टार्ट हुआ था, और बहुत ब्रीफली कि हम क्या काम करते हैं। सो माय चॉइसेस 2012 में स्टार्ट हुआ था, हैदराबाद, तेलंगाना में। और लेकिन अभी हम लोग भारत के 10 राज्यों में काम कर रहे हैं। और जो मकसद था माय चॉइसेस को स्टार्ट करने का, वो ये था कि हम औरतों और बच्चों और फैमिलीज को ये चॉइस दें कि वो लोग हिंसा से मुक्त या एक्सप्लॉयटेशन से मुक्त जीवन जी सके। और जो वैल्यूज हम लोग होल्ड करते हैं कि किस किस पे आधारित होगा ये काम। सो हम चाहते हैं कि कम्युनिटीज में और जो व्यक्ति हमसे जुड़े उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो, उनके अंदर एक जज्बा हो, जुनून हो कुछ बदलने का, हिम्मत दिया जाए। और उनके अंदर इक्वालिटी की फीलिंग की एज ए एक इंसान के तौर पर हर कोई बराबर है। तो विद दिस ये कुछ वैल्यूज हैं माय चॉइसेस फाउंडेशन के, जिनके साथ हमने ये काम शुरू किया था 2012 में। We have started the work of My Choices in the year 2012, headquartered at Hyderabad and Telangana, which is south of India. And we have started with this intention that we should be able to provide women and children, a family, the whole family, a choice to live a life free of violence. Because most of the time, people continue to live in violence because they think there's no way out. And they feel that there are no choices for them apart from undergoing the abuse. So the whole the heart behind My Choices is to give that choice for women, girls, and families. यस पर, मे बी द नेक्स्ट स्लाइड। या, सो दीज Yeah, I आर just ये जो, uh, हाँ। this यस is पर, one आई कैन point सी। I missed from you, Farzana. हाँ, We um, we Poland are not. Farzana. Yeah. I'm sorry. The presentation is not coming well. Can I ask Sister Angie to make me co-host so that I'll present? Sure. Yeah, yeah. या मे It's बी आई not. कैन प्रेजेंट, Yeah, I please. think होल्ड ऑन। sure. I think Yes, you're yes. both co-hosts, so you can both present. Farzana, I think you can. Just use या the आई कैन, presentation, not the PDF. Yeah, yeah. यस Thank यस, you. आई विल मेक मी को होस्ट, सो आई विल डू दैट। Anu, could you make her co-host, please? Yes, you're both co-host again. या, थैंक यू, जस्ट अ सेकेंड। Yeah, sure, no problem. As Fazana continues to do that, what I missed in that is we started off primarily in Hyderabad in Telangana, but now we moved to operate from 10 states of India. And this partnership of have working with other partners from different states has given us a leverage to be able to use the strengths of other NGOs and My Choices Foundation.
Pearl, can you see my screen? Yes, Farzana. Just keep it to the full screen. Yes, Kranti, I'm doing. Is it to full screen, Kranti, or not? Not yet, Farzana. Oh, okay. Yeah, I think now it has come, right, Pearl? Yes, Farzana. You can Okay. move the slide. Yes, thank you. Next. यस सो ये जो जैसा हमने कहा कि कई स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं, तो ये 10 स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पर माई चॉइसेस का काम अभी हो रहा है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और फिर हम लोग राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में भी काम कर रहे हैं। Yeah, you can move, Farzana. यस तो माय चॉइसेस फाउंडेशन जब स्टार्ट हुआ था, तो जो पहला काम हमने शुरू किया था वो ऑपरेशन पीस मेकर हम कहते हैं उस इनिशिएटिव को, और वो इस बारे में था कि हम कैसे डोमेस्टिक वायलेंस को कम्युनिटीज़ में रिड्यूस करें, औरतों को और कम्युनिटीज़ को एम्पावर करके। और साथ ही साथ जब हम कम्युनिटीज़ में काम करने लगे तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के भी बहुत सारे मामले आने लगे, तो हमने उस पर भी अपने आप को इक्विप किया, और अभी हम ये दोनों इश्यूज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ये पहला ऑपरेशन शुरू हुआ था जो 2012 में शुरू हुआ था। फिर 2014 में ऑपरेशन रेड अलर्ट स्टार्ट हुआ, और ऑपरेशन रेड अलर्ट का जो फोकस था वो ये था कि हम कैसे सेक्स ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करें, खास करके उन जगहों पर जहां हाई रिस्क है। उन उन राज्यों को चिन्हित किया गया, और उन राज्यों के साथ उन जगहों पे जो विलेजेस हैं, कम्युनिटीज हैं, उनमें कैसे हम अ, उनको कैसे हम लोग इक्विप करें, जिससे कि एक होलिस्टिकली चाइल्ड या वुमेन जो सेक्स ट्रैफिकिंग के मुद्दे हैं उनको रोका जा सके। Primarily, when My Choices Foundation started, we started with this first initiative of Operation Peacemaker. So that's one project we took it up, which works on the issue of domestic violence. And while we were working with the issue of domestic violence, we also encountered cases of child sexual abuse, and this has been a very heart wrenching. Kind of a feeling when we heard that these issues are so intertwined that we decided to work on domestic violence and also equipped ourselves to understand and work with the issue of child sexual abuse. Along with Operation Peacemaker in 2012, in 2014, we have started our work on the project called Operation Red Alert. And this particular project works extensively on prevention of sex trafficking, because what we understood is rescue of sexual trafficking victims is almost very, very difficult. Like it says 1% can be rescued. But when Operation Red Alert has chosen this intention of prevention, we are able to like save so many people from getting trafficked. So we extensively work on the prevention of sex trafficking. Next. थोड़ा सा मैं स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगी क्विकली कि जब हम ऑपरेशन पीस में के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस हमारा विंग है उसके अंदर जब हम काम करते हैं, तो हमारा एक बड़ा हिस्सा इंटरवेंशन का है और दूसरा हिस्सा प्रिवेंशन का है। सो इंटरवेंशन विच पर्ल हेड्स, उसमें हम लोग कम्युनिटी से ही विमेन को लेकर के उनको ट्रेंड करते हैं। तो हम लोग ने ऐसे 50 लगभग अर्बन स्लम्स को आइडेंटिफाई किया है, जहां पर वहीं से विमेन को लेकर के एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ट्रेन करते हैं, जो पहले लाइन है इसको रोकने के लिए या रिस्पॉन्स करने के लिए, जिनको हम लोग पीस मेकर कहते हैं। ये कम्युनिटी की वुमेन है जो बहुत ही बेसिक हैं, और उनको हम कैसे इक्विप करके एक फ्रंट लाइन पे उनको हम लोग स्थापित करते हैं। और वो महिलाएं जो काम करती हैं पीस मेकर, वो लोग आइडेंटिफाई करती हैं केसेस को, अवेयरनेस करती हैं, और हमारे जो 5 सेंटर्स हैं तेलंगाना के अंदर उन तक लेकर आती हैं, जहां पर एक्सपर्ट्स हैं, काउंसलर्स जो फैमिली और कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड कैसे वायलेंस को हैंडल किया जाए उसके वो लोग विशेषज्ञ हैं।
वो काउंसलर उनकी हेल्प करते हैं, ना सिर्फ औरत की बल्कि जो परपिट्रेटर हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, उनको भी हम बात करते हैं और उनके साथ सहायता करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही हम लोग इंटरवेंशन में जो डायरेक्ट हम लोग केस वर्क करते हैं, उसमें लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत बार ये आवश्यक हो जाता है कि महिला को उसके कानूनी अधिकार मालूम हो और कानूनी सहायता भी ली जाए। तो हम पुलिस के साथ लाइजन करते हैं, पुलिस के साथ भी हम एज ए स्टेक होल्डर काम करते हैं, और कोर्ट के अंदर भी हम फ्री केसेस फाइल करते हैं महिला की तरफ से, अगर उसे किसी प्रकार की सहायता चाहिए, जो कि मेंटेनेंस हो सकता है, बच्चे की कस्टडी हो सकती है, हिंसा को रोकना हो सकता है, या आर्थिक जो महिला को नहीं जो आर्थिक उसका हक है, जो उसका राइट है, अधिकार है, वो नहीं मिल रहा है, उसको भी हम कोर्ट के जरिए दिलाते हैं। और एक हमारे पास छोटा सा शेल्टर होम भी है, यानी एक 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 शॉर्ट स्टे होम है, जहां पर महिला अपने बच्चों के साथ आकर के थोड़े समय के लिए रह सकती है, जो हिंसा से गुजर रही हैं, ताकि उन्हें सहायता दी जा सके, और जब तक उनका जो जीवन है उसमें स्थिरता नहीं आ जाती है, तब तक काउंसलर उनके साथ काम करती है। तो ये हमारा जो है इंटरवेंशन मॉडल है। उसी के साथ साथ हमारा जो दूसरा हिस्सा बड़ा काम है, वो है प्रिवेंशन करने का, यानी रोकथाम करने का। तो उसके लिए हम लोग ये कम्युनिटीज में हमारे जो कम्युनिटी वर्कर हैं, जिनको हम पीस मेकर कहते हैं, वो लोग जाती हैं और बहुत सारी जो है सिस्टमेटिक तरीके से एक कम्युनिटी अवेयरनेस मीटिंग्स करती हैं, बातचीत करती हैं, लोगों को जानकारी देती हैं, और बहुत सारा प्रिवेंशन वर्क होता है। इसके साथ ही हम यंग बच्चे और जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या स्कूल के बच्चे हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। बाल सुरक्षा पर, बाल यौन हिंसा सुरक्षा पर भी बात करते हैं। इसके साथ ही जो जेंडर का इशू है, पितृसत्ता का इशू है, या फिर जो अनहेल्दी जो रिश्तों में बच्चे चले जाते हैं और बहुत तरह से समस्याओं का सामना करते हैं, इस आयु के जो बच्चे होते हैं, कॉलेज स्कूल जाने वाले, उनके साथ हम लोग काम करते हैं। और हम लोग एडोलसेंट जो वनरेबल कम्युनिटी में होते हैं, जो किशोरावस्था में हैं और हाईली वनरेबल हैं अर्बन स्लम्स में, उन लड़कियों और लड़कों के साथ भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के जरिए, लॉन्ग टर्म ये वर्क है हमारा, जो शक्ति और असली और बॉय टॉक है, ये लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस हैं, जो लगभग 1 साल तक उन बच्चों के साथ हम लोग जुड़ करके एक कोर्स के माध्यम से जुड़े रहते हैं और काम करते हैं। Yeah, the work of Operation Peacemaker, we work in two ways. When the survivors are identified, we provide end-to-end service to them, casework support for them. And to do that, we have our centers, counseling centers present in the state of Telangana, in Hyderabad particularly, and in Warangal as our counseling centers, where we have counselors, we have our trained peacemakers. Peacemakers are our women which we have trained from the community. So they are for the community, by the community. And this team is about 50. We have identified in about 50 communities. Our peacemakers, who are around 60 right now, men and women, work in these communities, and they engage highly in raising awareness about domestic violence, and also support the survivors who are identified from these communities. We also provide free counseling services. And during this counseling, we counsel the woman, we counsel the spouse or whoever is perpetuating violence, and we also provide them with legal services, like filing a case free of charge for them under the DV Act. And because most of the time women who go through domestic violence are caught in this whole issue and unable to leave to a safe place, they suffer from violence. So we also provide them with short-term shelter home, like a safe home for them to stay, safe space where they can stay with their children, minor children. And along with intervention, as we suggested, we work with a lot of police intervention. We are like major stakeholders for the Telangana police in training and also providing survivor support. We also work extensively on prevention because we understood that equally intervention and prevention are needed. So we work in the communities, as we said, around 50 communities,
And we also work with young adolescents through school program, college program, especially praising them about child sexual abuse and also intimate partner violence in younger adolescents, young adults. And we also conduct very systematic programs in vulnerable areas called the Super Smart Shakti and Asli Girls for girls and boys. And this method of prevention has been highly effective. यस, थैंक यू पॉल। और एक लगभग हमने जो हमारा रेड अलर्ट प्रोग्राम चलता है, वो पार्टनर के माध्यम से ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए उन पार्टनर्स के साथ भी हमने कुछ राज्यों में ये देखा गया कि डोमेस्टिक वायलेंस के मुद्दे बहुत सारे बढ़ रहे हैं। तो उन पार्टनर्स ने भी हमसे रिक्वेस्ट किया कि क्या हम काउंसलर्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं जो ये जो घरेलू हिंसा का मुद्दा है उसको एड्रेस कर सके। तो हमने एक्सपेंशन भी किया और लगभग ऐसे 7 राज्यों में हमारे रेड अलर्ट के पार्टनर्स के पास हमने अपने काउंसलर्स की भी नियुक्ति करी जो माय चॉइसेस की तरफ से नियुक्त हुए हैं, बट वो उनके ऑफिस में उनके एरिया में काम करते हैं 7 राज्यों में। और घरेलू हिंसा के जो मामले हैं वो काउंसलर्स वहां पर देख रहे हैं। Yeah, along with the support which we received from Operation Red Alert, we have trained and identified and trained counselors and placed with other NGOs who are like-minded, so that this work of the work of My Choices would be able to cater to the needs of very remote parts of India in the states we have just mentioned. Thank you. Yeah. So these are some of the stats. Quickly, we just want to we can share this deck with you for the further reference. This is from 2023. The data is a little old, but we have actually just now I got the latest data which says 21,000 women we have provided the counseling or legal support. So 21,000 plus women received support from My Choices Foundation. We provide case support, and we have done about 4,54,000 awareness programs among the community, 1,32,000 plus school programs we have done, and in fact 363 latest data which we got says that जो सर्वाइवर हैं जो हमारे शेल्टर होम को आकर के रहे, हमारे शॉर्ट स्टे होम जो हमने बनाया हुआ है सर्वाइवर के लिए, वहां पर लगभग 363 औरतों ने आकर के रुके हैं हमारे पास और उन्हें दूसरे सहायता प्रदान की गई है ऑफिस की तरफ से। सो आई थिंक पर्ल दिस इज Yeah, दिस इज you ओल्ड can go डेटा। ahead. सो यस, सो जो हमारा दूसरा प्रोग्राम रेड अलर्ट का होता है जहाँ और क्रांति जो है वो माय चॉइसेस फाउंडेशन से हैं, और क्रांति का जिस उस पर काम करती हैं वो ऑपरेशन रेड अलर्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। वहाँ बेसिकली जो हमारा बड़ा हिस्सा है काम का, वो जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है सेफ विलेज प्रोग्राम। क्योंकि ये देखा गया कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसमें उसको रोकथाम करने के लिए आपको सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, तभी इस मसले को आप हल कर सकते हैं। और ये कुछ हमारे तकनीकी तरीके से हम लोग जो सेफ विलेज प्रोग्राम होता है उसको कंडक्ट करते हैं, जिसमें फादर के साथ अलग होता है, मदर के साथ अलग होता है, लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ स्कूल में जा करके हम लोग अलग से बात करते हैं सेफ्टी के ऊपर, कैसे वो लोग रोकथाम कर सकते हैं, कैसे अलर्ट रह सकते हैं और अपने आप को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, किन किन तरीकों से जो मानव तस्करी होती है उस बारे में बात करते हैं। और इसके साथ ये जो 10 मॉड्यूल्स है, जो 10 तरीका आप देख रहे हैं कि ये रिसर्च से स्टार्ट हो करके कैसे सस्टेन हो वो सेफ विलेज का, जो सुरक्षित गांव का जो एक थॉट है वो कैसे सस्टेन हो, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। और हर एक मुद्दे पर हम लोग फोकस होकर के काम करते हैं। ना सिर्फ गांव में जाकर के हम ये प्रोग्राम करते हैं, बल्कि पीछे
स्टेक होल्डर्स को भी हम छोड़ कर आते हैं, जिन्हें हम लोग रक्षक, ग्राम मित्र या नोडल टीचर कहते हैं। ये गांव के ऐसे सम्मानित या ऐसे लोग होते हैं जो खुद आगे बढ़ करके इन प्रोग्राम के बाद आगे आते हैं और कहते हैं कि हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि हमारे गांव में ये प्रोग्राम होने के बाद भी कैसे ये कंटिन्यू हो, और अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखी जाती है उस एरिया में तो वो लोग कैसे हेल्पलाइन को हमारे रिपोर्ट करें। माय चॉइसेस के दोनों विंग के पास अपना नेशनल हेल्पलाइन भी है। So I'm Yeah. not explaining per every each and because time Yes. constraint. Yes. Yeah. I'll just mention briefly what Farzana meant with this whole slide is that Operation Red Alert, which works on the issue of prevention of sex trafficking, they have taken a very systematic view of handling this issue, and especially this prevention aspect has multiple stakeholders, and it cannot be just a one-off program. So equally, all the members of the village, including a father, mother, a young boy, and a young girl, and all the stakeholders in the village, whether it is the sarpanch, whether it is the teachers, whether it is the local community leaders, each one is trained with a very specific message. And so this 10-point program, which is here, is planned in such a way, it's a research-driven one, leading up to a sustainable model. So the whole idea of having a systematic model is that the prevention work happens very, very perfectly, and it doesn't lose out on its whole essence. Yeah, Farzana. Thank you. और ये कुछ 2024 तक के 2023 सॉरी तक कुछ आंकड़े हैं जो रेड अलर्ट के हैं, जिसमें लगभग प्राउडली 101 हमारे ग्रास रूट एनजीओज के साथ हमने पार्टनरशिप किया है, जिससे कि इस काम को आगे बढ़ाया जा सके। लगभग 10,000 प्लस सेफ विलेज प्रोग्राम्स हो चुके हैं, और जो कॉमिक बुक एक स्पेसिफिक मैसेजिंग के एक अलग अलग मैसेज माताओं के लिए, पिताओं के लिए, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए जो दिया गया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। लगभग 22 लाख के करीब ये ऐसे कॉमिक बुक जो है वो बांटे जा चुके हैं। 39 लाख पीपल जो हैं उन लोगों को एजुकेट किया जा चुका है कि कैसे सेक्स ट्रैफिकिंग होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। सो बहुत ही एक्सटेंसिव वर्क है, क्योंकि ये हम लोग ग्रास रूट एनजीओ के पार्टनरशिप के माध्यम से करते हैं। We can move us. यस। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे ये हिस्से में, ये माय चॉइसेस के बारे में था। आपको कोई सवाल है या आगे भी हम लोग इंटरैक्ट करके ज्यादा जानकारी दे सकते हैं कि कैसे हर वर्टिकल कैसे काम करता है। पर जो हम लोग आज बात करना चाह रहे थे इस प्लेटफॉर्म पर, हमारा मकसद ये था कि कैसे हम लोग बच्चों के बारे में सुरक्षा, खास करके या महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको हम लोग कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो एक एक जस्ट मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जस्ट बताना चाहूंगी कि बच्चों, हम सब चाहते हैं कि बच्चे सुरक्षित हों, उनका भविष्य सुरक्षित हो, लेकिन कोई भी जो हिंसा है या अब्यूज है वो हमें विचलित कर सकती है। तो प्लीज अगर अगले स्लाइड्स में आपको कुछ बातें ऐसी सुनने को मिली जिससे जो आपको तकलीफ हो रहा है, कुछ विचलित हो रहे हैं, तो हम उसके लिए सॉरी हैं। लेकिन आप ये समझिए कि ये नेचुरल है, और हम एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन, हमारे हमारे अंदर वो डिस्कम्फर्ट होना भी चाहिए, क्योंकि तभी पता चलता है कि हम संवेदनशील हैं इन मुद्दों के बारे में। तो प्लीज अपने आप को अलाउ कीजिए, थोड़ा समय लीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए। अगर किसी भी बात से आप विचलित हैं, प्लीज आप बाद में भी मुझसे और पल से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जस्ट अपने आप को वो समय दीजिए कि आप उससे निकल सके। Farzana, you go ahead, Farzana. Time is very less. Yeah. So I I think think this the is a slides clear are in attempt. English. Yeah, slides are in English. You can go ahead in Hindi. Yes, thank you, Paul. सो ये जो सेशन है इसमें हम लोग थोड़ा सा जान पहचान करेंगे अपने कि चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड जब या बाल सुरक्षा जब हम कहते हैं तो वो होता क्या है, और हम सब मिल करके कैसे एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव लेकर के आज हम लोग आपके सामने आए हैं।
अगर हम लोग डेटा देखें, और मुझे मालूम है कि आप सब लोग इस मुद्दे पर काम करते हैं, जुड़े हुए हैं, तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप शायद जिससे अवगत नहीं हैं। लेकिन फिर भी एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए जब मैं देख रही थी कि कैसे हमारा जो इंडिया है, वो सबसे वर्ल्ड में, मुझे लगता है दुनिया में सबसे 18 साल से नीचे के बच्चे हमारे पास ही सबसे ज़्यादा है। 39% ऑफ जो इंडिया का पॉपुलेशन है, वो बिलो 18 साल के नीचे है। और पूरी दुनिया का अगर डेटा देखें तो वो 25% बच्चे जो हैं। तो इसका मतलब हमारे पास बच्चे बहुत हैं और इसीलिए हमें इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हिंसा और जो अब्यूज़ का जब आंकड़ा देखते हैं तो देखते हैं कि दुनिया भर में 5 में से 1 लड़की या औरत या 7 में से 1 लड़का या आदमी अपने लाइफ टाइम में सेक्सुअल अब्यूज़ के शिकार होते हैं, यानी बाल यौन हिंसा के शिकार होते हैं। और 1 बिलियन जो चिल्ड्रन हैं वो मल्टी डायमेंशनल, यानी बहुत तरह की पॉवर्टी, जिसमें ना सिर्फ भूख है बल्कि शेल्टर भी है, एजुकेशन भी है, रहन-सहन है, माल नरिशमेंट है, उसके पॉवर्टी के शिकार हैं। और जिसमें 333 मिलियन जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं। इसी तरीके से चाइल्ड मैरिज का जब हम डेटा देखते हैं तो और भी भयावह है, क्योंकि हम देखते हैं कि एनुअली 12 मिलियन जो गर्ल्स हैं वो चाइल्ड मैरिज से प्रभावित होती है। 140 औरतें और लड़कियां हर दिन 2023 में मारी गई अपने इंटीमेट पार्टनर या उनके क्लोज रिलेटिव्स के द्वारा। तो ये आंकड़े हैं और ये सच्चाई है जो कि हॉरिफाइंग है, बहुत ही भयावह है। और इसीलिए हम सबको, सभी स्टेक होल्डर पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। और ये जो हिंसा है वो सिर्फ़ हर प्रकार की है, यानी कि शारीरिक है, सेक्सुअल है, मानसिक है, आर्थिक है, ये हर प्रकार की है। यूनिसेफ का डेटा हो, चाहे भारत के जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट ने 2007 में स्टडी की, दुनिया भर की स्टडी और हमारे खुद के अनुभव जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, वो भी इस आंकड़ों की पुष्टि करते हैं। तो हम लोग जब बच्चों के साथ काम करते हैं तो मैं क्या आप लोगों के ऊपर फोकस करना देना चाहती हूँ कि करें कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही मासूम होते हैं और वो हर समय किसी ना किसी तरीके से आपको इंगित करते हैं, आपको बताते हैं कि वो किसी तरह की मुश्किल या मुसीबत में हो सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप टीचर होने के नाते, आप किसी संस्था के कार्यकर्ता होने के नाते, या इनफैक्ट अपने आस-पास भी एज़ ए पड़ोसी, एज़ ए रिश्तेदार, खुद अपनी फैमिली में भी एज़ ए रिलेटिव, एज़ ए नेबर भी आप देखो कि क्या बच्चे किस तरह का व्यवहार शो कर रहे हैं। और ये आपको कई तरीकों से पता चल सकता है। उनके व्यवहार के द्वारा भी, वो जैसा इमोशंस डिस्प्ले करते हैं। इमोशंस की जब बात करें, क्या एक्सट्रीम एंगर में रहते हैं, एक्सट्रीम सैडनेस में रहते हैं, या हर वक़्त निराश रहते हैं। ये सब उनके इमोशनल तरीकों से जब वो अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, अगर वो एक्सट्रीम आपको दिखाई दे जाता है, बहुत फ्रीक्वेंट दिखाई दे जाता है, तो आप समझ जाइए कि बच्चा किसी न किसी तरह की मुश्किल में है। इसी तरह से फिज़िकल इंडिकेटर्स भी होते हैं। मैं आपको बताऊँ कि अभी हमने एक केस देखा है स्कूल में, जहाँ एक बच्ची गर्मी में भी पूरे आस्तीन के कपड़े हमेशा पहने रहती है, या स्वेटर या शर्ट। तो गर्मी में क्यों पहन रहे हैं, बाद में पता चला कि उसको माँ-बाप इतनी पिटाई करते थे कि उसको जो ब्रूजेज़ थे, जो इंजरीज़ थी, उनको ढकने के लिए वो पूरा ऐसा पहनती थी। तो कोई भी अनयूजुअल इवन फिज़िकल डिस्प्ले भी हो सकता है। उनका जो एकेडमिक है, उनका इंटरेस्ट है, उनका पढ़ाई-लिखाई से मन उचटना, सोशल ना हो पाना, अच्छे रिश्ते ना रख पाना अपने आस-पास के और दूसरे साथियों से, वर्बल और नॉन वर्बल बहुत सारे तरीकों से बच्चे इंगित करते हैं कि वो किसी न किसी तरह के मुसीबत में हैं। आप और हम एज़ ए अडल्ट, अगर बड़े लोग इसको थोड़ा-सा ध्यान देंगे, तो हम लोग बहुत आसानी से इनको समझ सकते हैं कि बच्चे किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी हमें इस तरह का कोई भी अवसर दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे अ अ, डिस्प्ले कर रहे हैं इस तरह के व्यवहार को, तो हमारा क्या दायित्व है, हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे पर विश्वास करें। बच्चे को बिलीव करें, उसको ये ना कहें कि ये, उसको मिनिमाइज़ ना करें या उसको डिनाई ना करें। उसको इनकार मत करें कि नहीं, ऐसा-ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुमने शायद गलत समझ लिया है, ऐसा नहीं हो सकता है। इस तरह के शब्द बच्चों से कृपया ना कहें। आप खुद धैर्य रखें। कई बार हम एज़ ए अडल्ट जो होते हैं वो तैयार नहीं होते हैं
हमको वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक इतने मुश्किल लगते हैं कि हम खुद तैयार नहीं होते हैं वो बात सुनने के लिए या उसको हैंडल करने के लिए। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि हम खुद धैर्य रखें, अपने अंदर साहस रखें कि हम उस बात को सुन सकते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कई बार हम लोग बच्चों को ऐसी चीज़ों की वादा करते हैं जो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। उनको हमेशा विश्वास दिलाइए कि हम कुछ सहायता ढूँढ सकते हैं। हो सकता है शायद ये मेरे अभी बस में नहीं है, लेकिन आप निराश ना हो, हम कहीं न कहीं जा कर के हम ज़रूर किसी न किसी से मदद लेंगे। मदद का आश्वासन दीजिए, लेकिन कोई ऐसा वादा ना कीजिए जो आप शायद पूरा नहीं कर सकेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं डिस्क्लोज़र को हैपन, जैसे आप ये ना उनसे वादा करिए कि तुम उनके साथ अगर बहुत सीवियर हिंसा हो रही है, तो आप उनसे ये वादा ना करें कि हम नहीं किसी को नहीं बताएँगे। आप वो समय ये कह सकते हैं कि हम आपको इस हिंसा से निकालने के लिए ज़रूर मदद जुटाएँगे। सीक्रेट रखने का वादा ना कीजिए अगर उनका खतरा है उनके ऊपर, तो इस तरह के वादे से मतलब है। कई बार हम लोग अक्सर जब बड़े लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे क्यों नहीं बता पाते हैं, बच्चे क्यों नहीं शेयर करते हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि बच्चा जो है छुपाना चाहता था या उसका कोई ऐसा इंटेंशन था। दरअसल बच्चे डर जाते हैं, बच्चे को लगता है कि मुझे ही दोष दिया जाएगा, उन्हें शर्मिंदगी रहती है, या फिर उनके कोई करीबी ही इतने ज़्यादा हैं, उनके नज़दीकी व्यक्ति ही उनको वो तकलीफ़, वो हार्म पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से नहीं वो बता सकते हैं। उनको ये डराया-धमकाया जाता है कि इसको खामोश रहना, इसको सीक्रेट रखना, नहीं तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है, तो वो फ़ियर में भी वो सीक्रेट रख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अक्सर वो सोचते हैं कि कोई मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए भी वो बात नहीं बताते हैं। तो प्लीज़ कभी भी जब ऐसा आपको किसी और माध्यम से पता चले कि ये बच्चे के ऊपर अन्याय या अत्याचार या अब्यूज़ हो रहा है, तो कभी भी बच्चे से ये ना जाकर कहे कि अरे मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम से काम कर रही हूँ या मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम ऐसे कैसे मुझ पर विश्वास नहीं करिए। कई बार एज़ एडल्ट हम हर्ट फ़ील करते हैं कि अरे मैं इस लायक भी नहीं थी कि ये बच्चा मुझे ये बात बता सका। तो प्लीज़ इसको ऐसे मत देखिए, बल्कि कारण समझने की कोशिश कीजिए बच्चा क्यों नहीं बता पा रहा है। दूसरी चीज़ है कि जब भी बच्चा बताए तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ताकि ये बहुत डिटेल काम है। बस मैं कुछ पॉइंटर्स आपके साथ रख रही हूँ कि जब भी ऐसा बच्चा कोई बात बताए, तो आप सुन कर के ऐसा मत कीजिए कि जैसा आपने अनसुना किया हो। हमेशा बच्चा जब शेयर करे तो उसको फ़ॉलो अप ज़रूर करिए। बाद में उसको चेक इन करिए कि तुम उस दिन मुझसे ऐसा बात कह रही थी, कह रहे थे, क्या हम उस पर और बात कर सकते हैं? इस बात को ऑनर कीजिए कि ये फैक्ट है कि बच्चा ने आप पे ऊपर भरोसा किया और आपको बताया, तो आपको उस चीज़ के लिए बहुत ही प्रसन्नता होना चाहिए। और इस बात को देर से बताया, पहले क्यों नहीं बताया, इस पर फ़ोकस करने के बजाय कोशिश करिए कि इस पर रहिए कि हाँ, कम से कम बच्चे ने बताया मुझे। और एक नॉर्मल और सपोर्टिव एनवायरनमेंट दीजिए, चाहे घर में बताया गया हो, क्लासरूम में बताया गया हो या ग्रुप में बताया गया हो, तो वहाँ पर उसको बहुत ड्रामाटाइज़ मत कीजिए, उसको बहुत एक्ज़ैजरेट करके उसको, बच्चे को और हम लोगों को ट्रॉमाटाइज़ नहीं करना चाहिए। एक नॉर्मल और काम वातावरण रखिए, उनकी बात को गंभीरता से धैर्यपूर्वक लगातार सुनिए। कई बार वो रिपीट करते हैं, जब बार-बार रिपीट भी कर रहे हैं, तो उन्हें सुनिए। और इस बात को बीच-बीच में ज़रूर दोहराइए कि बच्चे को कि तुम बहुत ही वैल्यूएबल हो, कीमती हो, तुमने जो बात मुझे बताई है उससे तुम्हारा वैल्यू, तुम्हारा रिस्पेक्ट कम नहीं होता है, तुम बहुत बहादुर हो कि तुमने मुझे ये बात बताई। तो वो रिपीट करिए उनके साथ, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना दीजिए, उसको जनरलाइज़ हाँ, सबके साथ होता है, उस घर में भी ऐसा हुआ था, हाँ, तुम्हें तो 2 थप्पड़ पड़ा, उसके पापा तो उसको रोज़ बेल्ट से पीटते हैं। इस तरह का भी वाक्य जो है बच्चों को हताश कर सकता है और वो हिंसा को बहुत थोड़ा करके, कम करके आँक सकता है। तो ये सब शब्द से भी हमें अपने आप को बचाना चाहिए कहने से, उनके ऊपर हम अ, इस तरह के व्यवहार ना डिस्प्ले करें। बच्चे की प्राइवेसी करें, लोगों के सामने हमें कभी भी हिंसा को नहीं उजागर करना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बच्चा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और समझ गए हैं, तो आप बच्चे को एकांत में लेके जाइए और कभी भी उसकी चर्चा सब लोगों के सामने बैठकर मत करिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम सबको एज़ ए एडल्ट समझना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर बच्चों की प्राइवेसी और रिस्पेक्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि
खास करके हिंसा और अब्यूज़ के मामले में हमें जो कानूनी जानकारी है, उससे भी हम अवगत रहें, उससे भी हम अपनी जानकारी बढ़ाएँ। हम उसके एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, हम ऐसे लोगों को बुला सकते हैं जो काम कर रहे हैं जानकारी लेने के लिए, पर हम लीगल प्रोटोकॉल के बारे में हमें ज़रूर अवगत होना चाहिए। कई बार ये बहुत ही ओवरवेलमिंग यानी बहुत ज़्यादा हो सकता है हमारे लिए ये इश्यूज़, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अकेला नहीं फ़ील करना चाहिए। माय चॉइसेस में हमने ये एक बात सीखा कि हमें दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन रखना, दूसरे रिसोर्स कौन है, कौन स्कूल प्रोग्राम पे काम करते हैं, कौन डेवलपमेंटल है। हो सकता है आपको साइकोलॉजिकल या डेवलपमेंटल इश्यूज़ भी बच्चे के मिल सकते हैं, ट्रॉमा हो सकता है, पर हम उसके विशेषज्ञ नहीं हैं। तो हम कैसे अपने आस-पास उन रिसोर्सेज़ का एक लिस्ट बनाएँ, उनके ऑर्गनाइज़ेशन को, उन संस्थाओं को विज़िट करें, जाकर के वहाँ पर उनको वे करें कि हाँ, कितने गंभीर हैं वो अपने काम में। क्योंकि जब हम किसी को रेफ़र करते हैं, किसी को कनेक्ट करते हैं, तो हम भी कॉन्फिडेंट होना, हमें भी विश्वास होना कि जिनके पास हम ये बच्चे को कनेक्ट कर रहे हैं, वो लोग हैं, सही संस्था हैं और वो सही मदद प्रदान कर सकते हैं। तो ये एक रिसोर्स की डायरेक्टरी अपने पास रखना, एक लिस्ट रखना बहुत आवश्यक है बच्चों के साथ काम करते हैं जब हम। बहुत सारे एक छोटा-सा हम लोगों ने जॉट डाउन किया कि कौन-कौन लोग होते हैं जो बच्चे के संरक्षण में इन्वॉल्व होते हैं। तो भारत की बात करें तो हमारे यहाँ पुलिस थाने हैं, उन पुलिस थानों के अंदर भी स्पेशल पुलिस यूनिट होती है जो एक हर ज़िले पर एक जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन जो जिसको बोलते हैं जिला बाल संरक्षण यूनिट वो भी काम करती है, उनसे उनकी जानकारी प्राप्त कीजिए। ट्रांसलेटर होते हैं, जो स्पेशल नीड एजुकेटर होते हैं, उनके बाद भी कई बार बच्चे डिस्क्लोज़ करते हैं, उनसे उल वो लोग भी इस इन्वॉल्व होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के जो एक्सपर्ट होते हैं, सोशल वर्कर हैं, एनजीओ हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, ये सारे लोग जो हैं वो बाल संरक्षण के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार हैं और जब भी इन्हें रिपोर्ट किया जाता है ये इनकार नहीं कर सकते हैं बच्चे की सहायता करने से। तो हमारे पास पता होना चाहिए कि क्या प्रोटोकॉल प्रोसीजर और कौन लोग हैं बच्चों के संरक्षण के लिए। एक बहुत बड़ा जो हम लाइफ चॉइसेस के अंदर फ़ोकस करते हैं कि हमें बच्चे को अकेला हम नहीं अ, बच्चा जो है वो हमेशा संरक्षण पे रहता है और ये हम बड़ों की ज़िम्मेदारी यानी अडल्ट की ज़िम्मेदारी बच्चे को सेफ रखने की। हम बच्चे की सेफ्टी की ज़िम्मेदारी बच्चे को नहीं दे सकते हैं, ये बहुत हमें क्लियरली समझना होगा, ख़ासतौर से जो यंग बच्चे हैं। तो इंस्टीट्यूशन यानी केयर गिवर किसी भी प्रकार का वो इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो स्कूल हो सकता है, वो ऑर्फनेज हो सकते हैं, वो हॉस्पिटल हो सकते हैं या वो हमारे चर्चेज़ हो सकते हैं, मॉस्क हो सकते हैं, कोई भी जो ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ बच्चे जाते हैं, वो पेरेंट और चाइल्ड ये 3 जब मिलकर के बच्चे का संरक्षण करते हैं और उससे जुड़े हुए रहते हैं, तभी जाकर के हम बच्चे को एक होलिस्टिक यानी एक संपूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ये पॉइंट को हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। साइलोज़ में या इंडिविजुअल इंटरवेंशन हम में बच्चे की हम बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ तक जो है मैंने छोटा-सा आप लोगों को एक एक ओवरव्यू दिया कि जब हम बच्चे के साथ काम करते हैं तो हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पर ये मसले, ये मुद्दे बहुत बड़े हैं। ये छोटे से सेशन में हम कवर नहीं कर सकते हैं। पर माय चॉइसेस बहुत ही आभारी है आपका कि आपने हमें ये समय दिया। अगर आपको आप में से किसी को भी, किसी संस्था को, किसी भी पास्टर को, किसी भी लोगों को चाहिए और जानकारी तो हम लोग आप क्रांति से के ज़रिए आप माय चॉइसेस फाउंडेशन को ज़रूर रीच आउट होइए। हम लोग जिन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं, हम उस पर आपका और डीप सेशन या इस तरह की जो है वर्कशॉप हम कंडक्ट कर सकते हैं। जहाँ संभव है वहाँ इन पर्सन पास में आके और जहाँ संभव नहीं है वहाँ ऑनलाइन भी कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि कई बार हम पूरी कोशिश के बाद भी नहीं कुछ कर पाते हैं, तो हम खुद को ब्लेम ना करें, सहायता लें, एक-दूसरे से शेयर करें।